Yeah, I didn't think so. That was a good total on that wicket. I thought they still on those wickets. Yeah, I think spinner has been doing well for like last 4 or 5 months, and they always come up and they raise their hands whoever comes. Bit of need for batsmanship. I thought there was either a dot or a swing. So when I was watching the game, I realized that like 160 to 180 kind of a pitch. But yeah, we pulled it in really well. And while chasing 147 for the team and try and find a partnership, I think the only thing is we couldn't find a partnership today. Had we found one, I think 165, 160 was a pass score on that wicket. Saim, even say Nawaz and Ibrahim, they come every time in the middle and they take wickets and they don't give many runs as well. And they're the one who put us back in the game. Slightly stoppy, and when you want to tee off the spinners and it's a bit stoppy, then you know you're going to lose a lot of wickets as well. And it wasn't easy to work the pace because the pace wasn't there from spinners. I was very happy, but we didn't start it well in power play, and then we have to play the way we did in obviously after power play. I think the guys were trying. We cannot fault them for trying. I think everybody was trying. I think. As you know, Pakistan has got a bit of history. When we came last night, I knew it is not going to be. I saw the pitch and I knew it is not going to be very, very high. And the spinners are quality as well with Saim, Nawaz and Abrar. It's not easy to just put them away. So I thought at that moment... Normally, India is like very high scoring games, but lately it's not been high scoring games. But I thought it's going to be 7 and over and just try and keep some wickets in the hand as well. Then we could have pulled the plug a bit earlier. But every time I thought I wanted to pull the plug, I ended up losing a wicket on the other end. That sort of held me back. I think we didn't start it well in both department, bowling and batting. And when you don't start well, the games get to that close. Certainly happy. There's more positive than negatives. But I think we're getting to a stage where the fight has always been there, but we must learn how to cross the line, and that has been the last hurdle. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आपने सिकंदर रजा और सलमान अली आगा का पोस्ट मैच इंटरव्यू सुना, आगे चलकर मजीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। दोस्तों, सीरीज का पहला टी20 मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला गया और पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के लिए यह मैच किसी हवालों से यादगार साबित हुआ। अगरचे पाकिस्तान ने यह मैच बआसानी जीत लिया, लेकिन असल ड्रामा उस वक्त शुरू हुआ जब मैच के इख्तिताम पर जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने एक ऐसे तहलका खेज बयान से पर्दा उठाया जिसने पड़ोसी मुल्क में खलबली मचा दी है। उनके पास इस बेबाक बयान के बाद वो तमाम लोग जो पाकिस्तान के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे थे यकदम खामोश होकर रह गए। नाजरीन, आपको यकीनन याद होगा कि चंद साल कबल जब श्रीलंका टीम पाकिस्तान पहुंची थी तो इस्लामाबाद में एक अफसोसनाक धमाका हुआ था। इस वाकये के बाद श्रीलंका टीम के कुछ खिलाड़ियों ने सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर वापस जाने का अंदलिया दिया था, लेकिन पीसीबी की अनथक कोशिशों की बदौलत श्रीलंका टीम ने न सिर्फ पाकिस्तान में ही रुकने का फैसला किया बल्कि सीरीज को कामयाबी के साथ मुकम्मल भी किया। उसके बाद यके बाद देगर मुख्तलिफ टीमें पाकिस्तान आई, जिनमें जिम्बाब्वे भी शामिल था। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने के लिए कई साजिशें की थी, उनकी तमाम कोशिशें यकसर नाकाम हो गई। नाजरीन, इसी तनाजर में मैच के बाद सिकंदर रजा ने वो बातें खुलकर बयान की जिनसे कई चेहरे बेनकाब होते नजर आए। इनका ये बयान न सिर्फ सच्चाई पर मबनी था बल्कि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे की ईंट से ईंट बजाने के लिए काफी साबित हुआ। उन्होंने भी बताया कि किस तरह कुछ मखसूस ममालिक और ग्रुप मुसलसल कोशिशें कर रहे थे कि ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान में ना हो और किसी ना किसी बहाने पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को रोक दिया जाए, मगर फिर भी ना सिर्फ साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और जिम्बाब्वे बल्कि दीगर टीमों ने भी पाकिस्तान आकर साबित कर दिया कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है और यहाँ का क्रिकेट माहौल दुनिया भर में बेहतरीन है। नाजरीन, अब अगर बात करें मैच की तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, जो कप्तान सलमान अली आगा की जानिब से एक बेहतरीन हिकमत अमली थी। जिम्बाब्वे के ओपनर्स आमतौर पर जारहाना अंदाज में खेलते हैं, इसलिए पाकिस्तानी बॉलर्स ने इब्तदा ही से इनको दबाव में रखा। शाहीन शाह अफरीदी डोमेस्टिक क्रिकेट से उभरते हुए होने वाले बासलाहियत बॉलर सलमान मिर्जा और इब्रार अहमद ने अपनी लाइनों लेंथ से जिम्बाब्वे के बैटर्स को खुलकर खेलने ही नहीं दिया। इब्तदाई ओवर्स में ही जिम्बाब्वे की बैटिंग लाइनअप मुश्किलात का शिकार हो गए। नाजरीन, मैच की सबसे नुमाया कारकर्दगी मोहम्मद नवाज की रही, जिन्होंने न सिर्फ बेहतरीन 91 रेट बरकरार रखा बल्कि यकीनी 2 विकेटें भी हासिल की। इनकी बॉलिंग ने जिम्बाब्वे के मिडिल ऑर्डर को मुकम्मल तौर पर रोक दिया, जिसके बाद जिम्बाब्वे अपनी रफ्तार बरकरार न रख सका। इब्रार अहमद ने भी अहम मौके पर विकेटें हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर्स में 34 रन देकर मुखालिफ टीम पर मुस्तकिल दबाव बरकरार रखा। वो
बॉलिंग के शोबे में मजमूई तौर पर पाकिस्तान की कारकर्दगी इंतहाई मुतासिर कुन रही और जिम्बाब्वे को बड़ा टोटल बनाने से रोक दिया। नाजरीन, जब पाकिस्तान की बैटिंग की बारी आई तो साइम अयूब और साहिबजादा फरहान ने अच्छा आगाज फराहम किया। अगरचे साइम अयूब इब्तदा में कुछ नर्वस नजर आए, लेकिन फरहान के दो खूबसूरत चौके टीम का मुराद बढ़ाने के लिए काफी थे। अलबत्ता वो ज्यादा देर विकेट पर ना रुक सके और उसके बाद कप्तान बाबर आजम सिफर पर आउट हो गए, जिससे शायकीन में तशवीश की लहर दौड़ गई। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तानी बैटिंग दबाव में आ गई थी। सलमान अली आगा भी ज्यादा देर क्रीज पर ना ठहर सके और ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद पाकिस्तान इस मैच में मुश्किलात में फंस जाए। मगर नाजरीन, क्रिकेट में ही क्यों कहते हैं कि मैच तब तक खत्म नहीं होता जब तक आखिरी गेंद ना फेंक दी जाए। इसका अमली मुजाहरा उस वक्त हुआ जब फखर जमान और उस्मान खान ने मैदान में कदम रखा। फखर जमान अपनी रवायत के मुताबिक जारहाना अंदाज में नजर आए और 44 रन की इंतहाई अहम इनिंग्स खेलकर टीम को वापस मुकाबले में ले आए। दूसरी जानब उस्मान खान ने भी जुम्मेदाराना बैटिंग करते हुए स्कोर को मुसलसल आगे बढ़ाया। उन्होंने 28 गेंदों पर 37 रन बनाए, जिनमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनकी ये इनिंग्स मुकम्मल तौर पर टी20 क्रिकेट की समझ बूझ पर मबनी थी, जहां सिंगल्स और डबल्स लेकर स्ट्राइक रेट को बेहतरीन अंदाज में बरकरार रखा गया। आखिरी लम्हात में मोहम्मद नवाज ने बैटिंग में भी अपनी सलाहियत दिखाई और 12 गेंदों पर 21 कीमती रन बनाकर टीम को मजबूत पोजीशन में ले आए। वो नॉट आउट रहे और पाकिस्तान ने 5 विकेटों से शानदार फतह हासिल की। ये जीत सिर्फ फखर जमान या उस्मान खान की नहीं थी, बल्कि पूरी बैटिंग लाइनअप के जज्बे और हौसले की अक्कासी थी। अगरचे टॉप ऑर्डर जल्द आउट हो गया, मगर मिडिल ऑर्डर ने जिम्मेदारी निभाते हुए टीम को फतह दिलाई। नाजरीन, अब आते हैं उस वीडियो के सबसे अहम हिस्से यानी कि सिकंदर रजा के बयान की जानिब। मैच के बाद इन्होंने मीडिया से यानी कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में गुफ्तगू करते हुए इन तमाम साजिशों का जिक्र किया जो पाकिस्तान में सीरीज रुकवाने के लिए रचाई जा रही थी। उन्होंने कहा कि कुछ मखसूस लोग और ममालिक चाहते थे कि पाकिस्तान में क्रिकेट ना हो और इस मकसद के लिए छोटा प्रोपेगेंडा फैलाया गया, मगर इनकी तमाम यानी कि झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया, मगर इनकी तमाम कोशिशें नाकाम रही। और हकीकत यह है कि पाकिस्तान न सिर्फ एक महफूज मुल्क है, बल्कि यहाँ क्रिकेट का माहौल दुनिया भर में सबसे ज्यादा पुरजोश और दोस्ताना है। नाजरीन, उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश में थे, उनकी उम्मीदें खाक में मिल चुकी हैं। ना श्रीलंका डरा, ना साउथ अफ्रीका पीछे हटा और ना ही जिम्बाब्वे ने कोई बहाना बनाया। सब टीमें आई, खेली और महफूज माहौल का तजर्बा किया और खुशी से वापस गए। सिकंदर रजा का यह बयान पड़ोसी मुल्क के प्रोपेगेंडा का भरपूर जवाब था, जिसके बाद वहां के मीडिया एंकर्स और सोशल मीडिया ब्रिगेड की खामोशी दी देनी थी। दोस्तों, पाकिस्तानी अवाम ने सिकंदर रजा के अल्फाज को दिल से सराहा है। इनके अंदाज गुफ्तगू में सच्चाई भी थी और जुर्रत भी, और इसी वजह से वो हार कर भी दिल जीतने में कामयाब रहे। नाजरीन, आपके ख्याल में क्या सिकंदर रजा ने दुरुस्त बात की है? क्या इनका यह बयान जरूरी था? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि क्रिकेट के हवाले से हर नई खबर और तजिया आपको देखने को सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।